Now, worksheet 1, which was given to you as homework. Now, I'm just discussing it. तुम लोग देख लो तुम्हारा सही है या गलत है. If you have any doubt, you raise your hand and ask the doubts. Okay. Now, up to sixth, we had mute yourself, all of you, please. Up to sixth, we had already discussed. Now, seventh is purchase Maruti car for rupees 30,000. So, you have to write what comes in, Maruti car comes in, what goes out, cash goes out. Now, eighth one जो था उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने गलत किया था, क्योंकि स्टूडेंट्स ने क्या देखा कि यहाँ पे अमाउंट दिया है, पर ये नहीं देखा कि ये एक रिसीव्ड एंड ऑर्डर है. अभी ऑर्डर मिला है, अभी तक कुछ भी एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है. It's a non-economic transaction. Is this clear? किसी को कोई डाउट है इसमें? Okay. Now, okay, हाँ बोलो. आदिल बोलो बेटा, क्या डाउट है? સર આ નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન કેવી રીતે થાય? કેમ કે હજી ખાલી ઓર્ડર જ મળ્યો છે, હજી કંઈ આપણે સપ્લાય નથી કર્યું, ન આપણે રૂપિયા લીધા છે, એટલે આ એક નોન ઇકોનોમિક ટ્રાન્ઝેક્શન છે. ખ્યાલ આવ્યો? રિસીવ્ડ એન્ડ ઓર્ડર મળ્યો છે, હજી કંઈ કામ આપણે કર્યું નથી. ગોટ ઇટ? યસ સર, થેન્ક યુ. Transaction છે ને, transaction you have to read properly, you have to see what is given. So when you read the transaction, you see the word received and order. So we are just receiving an order to supply some, over here it's to supply pizza. Okay, ये सब तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, unless you are a domino. तो यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस किया, हमें एक ऑर्डर मिला है, अभी तक हमने उनको कुछ भी सप्लाई किया नहीं है, ना हमने उनसे कुछ एडवांस लिया है, तो कोई ट्रांजैक्शन ही हुआ नहीं है. Is this clear? So it's a non-economic transaction. Got it? યસ. Yes, sir. Now, paid for puncture of bike. I think majority or all of you have done this correct. The word paid is there. So we know effect B, what goes out, cash goes out. Effect A, what comes in, service comes in. Name of the service is, many have written puncture expense, or you can also write repair expense. Okay, repair expense incurred, puncture expense incurred. Okay, you can write any of them. For me or for you, ideally it would be repair expense incurred. Okay, puncture expense अलग से हमने नहीं लिखेंगे. Now, sold old sofa set of 3,000. Now, what comes in when you are selling a sofa set? Cash comes in. What goes out? Now, if you have written old sofa set goes out, that is not wrong. But ideally, you should have written furniture goes out. Okay, if you have written furniture goes out, it's correct. If you have written old sofa set, that is also correct. But more appropriate would be furniture goes out. तो correct कर लेना अगर तुमने old sofa set लिखा है तो. Now, सर गुड्स नहीं लिख सकते? नहीं, यहाँ हम गुड्स नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पे ऐसा दिया ही है कि सोफा सेट है, फर्नीचर है, इसके लिए. ओके सर. गुड्स का पूरा डेफिनेशन अलग है, मैं वो भी उसके ऊपर भी आऊंगा. ओके, एक दो सेशन के बाद. नाउ सर પણ પેલા વોટ કમ્સ ઇન માં ઓલ્ડ સોફા સેટ ના આવે. सॉरी, આ પેલા વોટ કમ્સ ઇન માં ઓલ્ડ સોફા સેટ ના આવે. અરે સોલ્ડ છે, સોલ્ડ. માનવ સોલ્ડ એટલે વેચ્યું. સોલ્ડ છે મતલબ કે મેં કોઈ ઓલ્ડ લખી પાડ્યું. હા, સોલ્ડ છે, તું વાંચ જો, સોલ્ડ છે, સોલ્ડ. ખ્યાલ આવ્યો? ખ્યાલ આવ્યો તને? હા સર આયો.
Okay. idea. Okay. Now, bank sanctioned overdraft. Now, what is a overdraft? First, you need to understand what is a overdraft. Let's say, for example, तुम्हारा बैंक में बैलेंस है, ओके, यानी बैंक में तुम्हारा पैसा है, बैंक बैलेंस, रुपीज 10,000, ओके. नाउ तुम्हें अभी 50,000 रुपीज का जरूरत पड़ा है, पर तुम्हारे बैंक में तो बैलेंस सिर्फ 10,000 ही है. तो तुम क्या करते हो, तुम बैंक के पास जाते हो और बैंक को कहते हो कि मुझे 50,000 रुपीज का जरूरत है, पर मेरे पास अभी सिर्फ 10,000 है, और ऐसी जरूरत मुझे आगे भी आती रहेगी कि पैसा चाहिए बिजनेस में, और कितनी बार पैसा आया नहीं है लोगों से, मुझे पेमेंट करना है, तो मुझे ऐसा फैसिलिटी करके दो जहां पे जितना भी बैलेंस है उससे ज्यादा मैं विड्रॉ कर सकता हूँ. तो बैंक ऐसा कहता है कि ओके, वी विल गिव यू अ फैसिलिटी ऑफ बैंक overdraft. Now, what is this facility of bank overdraft? Bank overdraft means you can withdraw more than your bank balance. So अभी तुम्हारा बैंक बैलेंस है 10,000, पर तुम 10,000 से ज्यादा पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकते हो. ऐसा फैसिलिटी जो बैंक देता है उसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. नाउ ओवर हियर बैंक ने क्या किया, बैंक ने सैंक्शन किया, यानी बैंक ने ऐसा कहा कि 2 लाख रुपए तक तुम विड्रॉ कर सकते हो, पर अभी तक हमने कुछ भी विड्रॉ किया नहीं है. सो इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. राइट ओवर योर नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. Got it? Any doubt, anyone? You understood what is sanction? Sanction करना यानी अप्रूव करना. ओके, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा तुम्हें कि हर महीने तुम्हारा नॉर्मली खर्चा होता है 500 रुपए, 700 रुपए, 800 रुपए, 400 रुपए, तो तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा कि तुम्हें परमिशन है 1,000 रुपए पर मंथ खर्च करने की, पर सबका हिसाब देना पड़ेगा. तो ऐसा सैंक्शन किया, अप्रूव किया, या ऐसा कहा कि इतना तुम खर्च कर सकते हो. तो यहाँ पे बैंक ने तुम्हें सैंक्शन किया यानी अप्रूव किया कि तुम 2 लाख रुपए तक विड्रॉ कर सकते हो. तो अभी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है. इट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. एनी डाउट, एनीवन? All of you understood this? Okay, now purchased a mobile phone of rupees 10,000. अब BlackBerry तो outdated हो गया है, obsolete हो गया है, generally कोई खरीदता नहीं है. So you are buying a mobile phone, so mobile phone comes in and cash goes out. Now 13, many have made mistake in 13th one. In the 13th one, paid for consultancy to architect for making a new office premise. Now the word paid is there, और ऐसा दिया है कि पे किया किसके लिए, कंसल्टेंसी के लिए. सो ओवर your first effect will be what comes in, service comes in, name of the service is consultancy expense incurred. And what goes out? Cash goes out. Now students, इसमें तुम्हें ऐसा लॉजिक लगाना है, whenever the word paid comes, paid means हमने पैसा दिया किसी को, तो जैसे ही paid आया तो एक इफेक्ट तो तुम बना ही सकते हो कि
पेड मीन्स कैश गोज आउट, तो इफेक्ट भी पहले लिख लो, फिर तुम सोचो माइंड में कि ये पैसा हमने क्यों दिया, क्योंकि हमने आर्किटेक्ट से कोई सर्विस लिया, आर्किटेक्ट से कंसल्टेंसी लिया, तो हमारा खर्चा हो रहा है, पैसा जा रहा है, तो व्हाट कम्स इन, सम बेनिफिट और सर्विस कम्स इन, और वी से कंसल्टेंसी एक्सपेंस इनकर्ड. Got it? Got it, all of you? Yes, sir. Okay, now next one, 14, also very interesting. Now, goods of 100 were received as free samples, which were distributed as free samples to customers. अब मेरा शॉप है, उसमें मैं बहुत सारा प्रोविजन का आइटम रख रहा हूं, तो कोई नया टाइप का बिस्किट आया, तो मुझे वो बिस्किट कंपनी ने कहा कि ये बिस्किट्स तुम रखो तुम्हारे शॉप में, और जो भी कस्टमर आएंगे उनको फ्री में दो, ताकि वो लोग ये बिस्किट खाएंगे, उनको अच्छा लगेगा, तो वो हमारा बिस्किट्स बाई करेंगे तुमसे. तो अगर तुम्हें कुछ फ्री मिला है और तुम वही चीज फ्री में किसी को दे रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा नहीं है. इट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. अंडरस्टूड दिस? इट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. एनी डाउट एनीवन? समझ में आ गया सबको? ऐसा होता है ना, कितनी बार हमारे घर पे कुछ हमारे वहां फंक्शन हुआ तो लोगों ने हमें गिफ्ट दी. जैसे कि मान लो कि तुम्हारा नया घर तुमने लिया, वास्तु पूजन किया, तो बहुत सारे गणेश भगवान गिफ्ट में आ गए. अब तुम क्या करोगे इतने सारे गणेश भगवान का? तो तुमने क्या सोचा कि ये अब जिसके भी घर पे वास्तु पूजा होगा, इसमें से एक एक भगवान हम उनको गिफ्ट में दे देंगे. तो अपने पास आया हुआ चीज फ्री में किसी और को फ्री में चिपका दिया, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा नहीं है. ना हमें कोई इनकम हो रहा है, ना हमारा कोई एक्सपेंस हो रहा है, हमारे पास आया और हमने किसी को दे दिया. तो इट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. बट माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दो, अगर मेरे पास कुछ फ्री में नहीं आया पर मैंने लोगों को फ्री में दिया, तो क्या ये मेरा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है? दैट्स द क्वेश्चन टू यू. No. No, sir. मेरा दुकान है और मैंने अपने आप कुछ फ्री में दिया लोगों को, जो मुझे फ्री में नहीं मिला है पर मैंने लोगों को फ्री में दिया, तो क्या वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है? No. No, sir. हाँ सर, क्योंकि आपने तो पैसे नहीं लिए ना उनके हाँ, पास. पर मुझे तो खर्चा हुआ ना, हाँ, आपको खर्चा हुआ, पर तो फिर मेरे Cash लिए goes खर्चा out. हुआ कि नहीं हुआ? इसमें तो कुछ कम सीन होगा ही नहीं सब. फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एग्जाम्पल कि तुम यूविल में आए, ओके, नॉर्मल ईयर था, तुम्हें एडमिशन लेना था, तो तुम यूविल में आए, तुमने यूविल विजिट किया, मैंने तुमको मेरा ब्रोशर दिया फ्री में, तो यूविल के लिए ये एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है? इकोनॉमिक. क्यों? क्यों ये क्यों एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या ये क्यों नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है? कौन बताएगा? सर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ही हुआ ना. नॉन इकोनॉमिक हुआ ना. सर इसमें कुछ एक्सचेंज तो नहीं हो रहा है ना? हमने वाले ने फीस तो दी नहीं है. कुछ कम मुझे सीन. एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ओके, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे घर पे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, ठीक है, अब तुमने सबको, जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स आए थे, ओके, उनको तुमने रिटर्न गिफ्ट दिया फ्री में, रिटर्न गिफ्ट दिया फ्री में, तो तुम्हें खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है. हो रहा है ना. हो रहा है. अब मेरा दुकान है प्रोविजन स्टोर, ओके,
और मैं उसमें सब म्यूट कर दो, अगर कुछ बोलना नहीं है तो म्यूट कर दो। अगर मैं वो प्रोविजन स्टोर पे कुछ प्रमोशन करने के लिए, फॉर एग्जांपल मेरा फरसान का दुकान है, ओके, लेट्स से दिस वे, मेरा फरसान का दुकान है, ओके, मैंने एक नया टाइप का समोसा बनाया, चीज समोसा, ठीक है। मैं जितने भी कस्टमर्स आते उनको फ्री में देता हूँ, 2 समोसे फ्री में, चखो कैसे लग रहे हैं। तो ये दुकानदार के लिए, मेरे लिए ये एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नॉन इकोनॉमिक है? नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक है। क्यों, खर्चा नहीं हो रहा है मेरा? पर सर आपने पैसे कमाने के लिए तो वो नहीं किया ना, वो लोग चखे और फिर खरीदे, तो इसलिए तो वो नॉन इकोनॉमिक। अच्छा काशवी एंड यस सर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये मेरा एडवर्टाइजमेंट खर्चा है? हाँ सर मैं बोलो। अरे अरे वाह, कौन बोलियो? मैं जयदत्त। जयदत्त, ओके, वेरी गुड। नाउ कैन वी से कि ये एक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है? हाँ। कैन आई से बेनिफिट कम्स इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस incurred? यस। And can I say goods goes out? यस। 2 इफेक्ट तो हो गया ना। हाँ। तो तुम्हें ना एग्जाम में ध्यान रखना है, अगर हमने कुछ फ्री में किसी को दिया है तो वो हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है। अगर कुछ फ्री में मिला, फ्री में दे दिया, तो हमें कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, क्योंकि मेरा खर्चा हो रहा नहीं है। समझ में आ गया ये कंसेप्ट? सर हाँ, इसमें कमसिन क्या होगा? तो इसमें बेनिफिट रिसीव, सर्विस कम्स इन, सर्विस तो नहीं कह सकते, बट वी आर रिसीविंग सम इकोनॉमिक बेनिफिट, एंड दैट बेनिफिट इज व्हाट? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इनकर्ड, खर्चा हो रहा है। अंडरस्टूड दिस? शुभांकर, तुमने Yes. पूछा था? यस यस। ओके, तो तुम्हें ना ट्रांजैक्शन प्रॉपर्ली पढ़ना है और तुम्हें देखना है कि ये ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि अकाउंट्स में क्वेश्चन बराबर पढ़ना और सोचना कि क्या हो रहा है। गुड्स फ्री में मिला, किसी को फ्री में दे दिया, मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, वही गिफ्ट उठा के मैंने किसी और को चिपका दिया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर मैंने खुद के पैसों से गिफ्ट खरीदा तो मेरा खर्चा हो गया। तो बिजनेस में भी अगर हमने कुछ किसी को फ्री में दिया जो हमें खुद फ्री में नहीं मिला है, तो इट इज अवर एडवर्टाइजमेंट expense. Is this clear? Okay, let's proceed with the next one. Now, sold music player. So sold, so cash comes in, music player goes out. Purchase goods by paying cash 3,000. What comes in? Goods comes in, cash goes out. Purchase a movie ticket, सबने ये सही किया था because ये हमने already क्लास में डिस्कस कर लिया था। Entertainment expense incurred, cash goes out. Then sold furniture, we are selling, cash comes in, furniture goes out. Then paid for servicing of Honda Activa. So what comes in? Some benefit, economic benefit हमें मिल रहा है, service मिल रहा है, तो service comes in. We can write repair and maintenance expense incurred, or you can also write vehicle service expense incurred, and cash goes out. Yeah, Sridhar, tell me. સર તમે જે કીધું તું તો મેં તમને જે ફોટો મોકલ્યો તો આ જે તમે 25 લખવા આપ્યા હતા તો એમાં મેં તમને જે પહેલું પેજ આપ્યું હતું એમાં તમે રોંગ કીધેલું પર હમણાં જે મેં આગળના જે લખ્યા એ બધા તો રાઈટ છે એટલે મારી ભૂલ શું થઈ છે એમાં? હા, તો હજી આખું પતવા દે બધું ડિસ્કશન, એટલે તને ખબર પડશે where you were wrong. Okay? ઓકે. Yeah. Then purchase goods of 10,000 for cash.
So what comes in? Goods comes in, cash goes out. Now 21, please be careful. Received brokerage. Whenever the word received is there, रिसीव्ड यानी हमें मिला, क्या मिला? ब्रोकरेज. तो हमारे हाथ में क्या आया? कैश आया. सो व्हाट कम्स इन? यू राइट कैश comes in. नाउ रिसीव ब्रोकरेज यानी कोई हमें पैसा क्यों? Service goes out. किसी को कोई बेनिफिट दिया, किसी के लिए कुछ काम किया, कुछ एफर्ट्स किए हमने, तो सर्विस गोज आउट. और वी राइट ब्रोकरेज इनकम earned यानी पैसा कमाया. नाउ 22nd, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था और ये मैंने सबको कहा था बाद में कि ये भी तुम्हें करना है अप टू 25. नाउ छुट्टा कराया. तुम बैंक में गए, यू रिसीव्ड अ चेंज ऑफ 1000 इन एक्सचेंज ऑफ ₹1000 करेंसी नोट. ऑब्वियसली अब ये 1000 का करेंसी नोट तो रहा नहीं है, पर ये तब का मटेरियल है जब 1000 का करेंसी नोट था. तो इन शॉर्ट हमने चेंज कराया, छुट्टा कराया. तो क्या ये कोई ट्रांजैक्शन हुआ? इट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. इज दिस क्लियर? Yes. सो लिख देना नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. देन sold books for 5,000. Now you already know this. Sold books for 5,000. Cash comes in, books goes out. Paid salary 4,000. So salary expense incurred. What comes in? Service comes in. What goes out? Cash goes out. Received commission 500. Cash comes in. Commission income earned. Understood this? All 25 done. Does any one of you have any doubt in this? Sridhar, you understood what was wrong? Yes, sir. Manav, tell me. સર મને તો 21st ના ખબર પડી એમાં કેમ વોટ કમ્સ ઇન માં કેશ ના આવ્યું. અરે માનવ, received brokerage એટલે brokerage મળ્યું. brokerage એટલે દલાલી. આપણે કોઈને કઈ વેચવામાં કે ખરીદવામાં મદદ કરીએ તો એ ફ્રીમાં ના કરીએ. એની માટે જે આપણને વચ્ચે કમિશન મળે કે જે કટ મળે એને આપણે, જે દલાલી મળે એને આપણે બ્રોકરેજ કહીએ. તો રિસીવ્ડ બ્રોકરેજમાં આપણા હાથમાં શું આવ્યું? if you say I received pocket money, if Manav receives pocket money, so what comes in his hand? Cash, exactly. So we received brokerage, so cash comes in. Now cash કેમ કોઈ આપણને આપે છે? કેમ કે આપણે કઈ સર્વિસીસ આપી, આપણે કોઈ માટે કઈ કામ કર્યું, આપણે કોઈને એવો કોઈ ઇકોનોમિક બેનિફિટ આપ્યો, એટલે આપણી માટે આપણી ઇન્કમ થઈ ગઈ. એટલે we say brokerage income on. ખ્યાલ આવ્યો? રૂપિયા આવ્યા તો આવક થઈ, અને રૂપિયા આપણે કોઈને આપ્યા તો ખર્ચો થયો. સિમ્પલ. ઓકે सर एक बार 25th समझा जरा. 20th 25th. 25th is again the same thing. Received commission 500. So received. So what comes in? Cash comes in. Okay. And why we are receiving this cash? Because we have given some services and that person is giving us some money in the form of commission. So we say commission income earned. Got it? Sir, what services are in 25th? Rohan, I'm not able to hear you. Hello, sir. हाँ बोलो. Sir, 25th માં what goes out માં services જ આવે ને? Yes, service goes out. Okay, sir. Service goes out. Okay. Name of the service, commission income earned. Okay. तो सबका ये 1 to 25 हो गया. सबको समझ में आ गया? थम्स अप दे दो सर को. हाई फाई तो नहीं दे सकते हो, थम्स अप दे दो. ओके.
किसी को 1 to 25 में कोई डाउट है? ओके, नाउ आज मैं तुम्हें एक नया कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, तो अभी वर्कशीट बंद कर दो, उसका जरूरत नहीं है, तुम्हें ध्यान देना है और तुम्हें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। इसके लिए ही आज मैंने मेरा लेक्चर 3 को एक्टिव नहीं रखा है ऐप पे, क्योंकि पहले मैं तुम्हें ये कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ, फिर तुम लेक्चर 3 देखोगे। नाउ let me go to the whiteboard. Okay, now all of you please pay attention. I'm going to ask you a very practical question. Jaidat, sir. You will not reply. Okay, sir. Okay, now see, तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर पे न्यूज़पेपर आता है? कैन यू पुट अ थम्स अप फॉर दैट? मेनी ऑफ यू, ग्रेट। ओके, सबके घर आना ही चाहिए और तुम सबको न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। इट्स द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। ग्रेट। तुम में से कितने लोग हैं जिनके घर पे दूध की थैली आती है एवरीडे मॉर्निंग? All of you? I think all of you? लेने जाते हो। ओके, लेने जाते हो तो एप्लीकेबल नहीं है। ओके, मेनी ऑफ यू के घर में इवन आयनिंग करने के लिए इस्त्री करवा માટે ધોબી આવે જે કપડા લઈને જાય અને એ પછી ઇસ્ત્રી કરીને આપણને આપી જાય। ओके, तो ये तीनों जो लोग हैं, एक है हमारा धोबी, एक है हमारा मिल्कमैन दूध वाला, और एक है न्यूज़पेपर वाला। नाउ ये जो काम कर रहे हैं ये तीनों लोग, क्या तुम्हें लगता है ये हाईली क्वालिफाइड है? तुम जैसे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो लोग, पढ़े होंगे वो लोग? No, sir. Obviously not. Okay, now just see how complicated this thing is. Okay, let me take an example of this newspaper person. So I'll write newspaper wala. Okay, now ये न्यूज़पेपर वाला है, वो अलग अलग टाइप के न्यूज़पेपर सप्लाई करता है अलग अलग घर पे। ओके, से टाइम्स ऑफ इंडिया है, इकोनॉमिक टाइम्स है, गुजरात समाचार है, देन संदेश है, देन दिव्य भास्कर है। ओके, देन एनी अदर न्यूज़पेपर? टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, गुजरात समाचार, संदेश, दिव्य भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस। एनी एल्स? ओके, तो लेट्स से इतने न्यूज़पेपर जो मुझे पता है, ओके, जो यहाँ पे हमने लिखा है, और भी होंगे, आई डोंट नो, कोई वर्नाक्यूलर हो सकता है। ओके, जैसे कि कोई हिंदी जिनका मदर टंग है वो शायद कोई हिंदी में आता न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो मुझे पता नहीं है। नाउ ये सब न्यूज़पेपर है, इसके साथ साथ मैगजीन्स आती है जैसे कि चित्रलेखा है, इंडिया टुडे है, ऐसे अलग अलग मैगजीन्स है। नाउ यू विल बी रियली सरप्राइज टू नो कि ये हर एक न्यूज़पेपर का एवरीडे का रेट अलग अलग होता है। कितनी बार से फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक टाइम्स, तो उसका सैटरडे का रेट अलग होता है, संडे का रेट अलग होता है, मंडे को उसके साथ एक सप्लीमेंट आता है तो उसका रेट अलग होता है, संडे को टाइम्स ऑफ इंडिया का रेट अलग होता है। वैसे अलग अलग न्यूज़पेपर का अलग अलग रेट होता है। नाउ ये जो न्यूज़पेपर वाला है, मान लो कि वो 300 घर पे एवरीडे मॉर्निंग न्यूज़पेपर सप्लाई करता है, 300 घर पे, 300 हाउसेस। नाउ हर एक घर पे अलग अलग न्यूज़पेपर का रिक्वायरमेंट है,
अलग अलग कॉम्बिनेशन है, अलग कितनी बार ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट टेक इकोनॉमिक टाइम्स ऑन संडे, आई डोंट टेक दैट इकोनॉमिक टाइम सप्लीमेंट ऑन मंडे। मैं ऐसा कहता हूँ कि ये 2 दिन मुझे नहीं चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया सिर्फ संडे को मंगवाते हैं। तो सबके अलग अलग टाइप के न्यूज़पेपर लोग लेते हैं। देन कितनी बार तुम 10 दिन के लिए बाहर चले गए तो तुम उसको कहते हो कि 10 दिन न्यूज़पेपर मत डालना। बजट आया तो तुमने बोला कल मुझे इकोनॉमिक टाइम्स देना क्योंकि आज बजट है। तो ऐसे अलग अलग उसके पास कॉल आते रहते हैं। एवरी डे सम और द अदर न्यू डिमांड कम्स अप। 15 दिन गुजरात समाचार पढ़ा, फिर मूड बदल गया कि ये तो बहुत ही एंटी बीजेपी है एग्जाम्पल, ओके, तो अब मुझे ये नहीं पढ़ना है, मुझे दिव्य भास्कर पढ़ना है। फिर हफ्ता 10 दिन वो पढ़ा, फिर लगा कि नहीं नहीं इसमें तो पूरे दिन बीजेपी की तारीफ ही हो रही है, मुझे कुछ उसके खिलाफ सुनना है। तो वापस हमने कहा कि गुजरात समाचार चालू करो। तो सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं। नाउ ये जो पर्सन है न्यूज़पेपर वाला, मॉर्निंग 3:30 को, ध्यान दो, रेलवे स्टेशन जाता है जहां पे न्यूज़पेपर आते हैं और वहां पे वो सब कलेक्ट करता है, सॉर्ट आउट करता है, कितने एडवर्टाइजमेंट के फ्लायर्स डालता है। उसके बाद अराउंड 5:30 से या 5 o'clock से वो हर एक घर पे न्यूज़पेपर डालना चालू कर देता है, विच गोज अप टू 7-7:30। नाउ ये जो पर्सन है न्यूज़पेपर वाला, वो 300 हाउसेस पे जाता है और हर एक का कहने से उसको हिसाब रखना पड़ता होगा। डू यू ऑल अग्री? Yes. Yes, sir. ऑल ऑफ यू प्लीज ध्यान देना। Yes, sir. Yes, sir. इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ ये न्यूज़पेपर वाला न इतना पढ़ा लिखा है, न उसके पास कंप्यूटर है जहाँ पे वो ये सब इंफॉर्मेशन डाल सकता है। सिमिलरली फॉर मिल्कमैन, ये भी जो मिल्कमैन है अलग अलग टाइप का रिक्वायरमेंट होता है। कोई बोलता है अमूल गोल्ड, कोई बोलता है अमूल शक्ति, कोई बोलता है अमूल स्लिम, कोई बोलता है काउज मिल्क, बफेलो मिल्क इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, काउज मिल्क। अलग अलग रिक्वायरमेंट है। किसी दिन 3 थैली, किसी दिन 5 थैली, किसी दिन 0 थैली, उसका भी यही हाल है। तो ये लोग, इस्त्री वाला, शर्ट पैंट के चार्जेस अलग है, साड़ी का चार्ज अलग है, कुछ अलग टाइप का फैब्रिक है तो उसका चार्ज अलग है ना। ये जो लोग हैं वो तुम्हारे जितने पढ़े लिखे नहीं है, ना वो आईटी सैवी है, उनके पास कोई ऐसा ऐप है। अब ये न्यूज़पेपर वाला मान लो तुम्हारे पास आता है और तुम्हें कहता है कि भाई बहुत बढ़िया, अभी तुम कॉमर्स कर रहे हो, अच्छी स्कूल में जाते हो, इंग्लिश मीडियम में તમે ભણો છો, મને હેલ્પ કરો, હું 300 લોકોના હિસાબ રાખીને થાકી ગયો છું, મારે આમ ત્રાસ થઈ ગયો છે, હર મહિનાના એન્ડમાં મારે લોકો આગળ જવું પડે છે, બિલ લઈને બિલ બનાવવા પડે છે, આઈ એમ ફેડ અપ, મને કઈ એવું સોલ્યુશન આપો कि मारे आ બધું કરવું પડે नहीं। तो तुम्हें उसको एक सॉल्यूशन देना है जहां पे उसको ये कुछ नाम वाम लोगों का ये सब हिसाब रखने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि बेचता है वो रोज सुबह आता है, न्यूज़पेपर डालता है, चला जाता है, यानी उसको तो हर एक चीज का हिसाब रखना पड़ता है। अब ऐसा क्या करेंगे कि उसको ये हिसाब रखने की जरूरत ही नहीं हो? क्या आइडिया दोगे तुम? ऐसा मत बोलना कि ये काम ही बंद कर दो। Raise hand. Raise hand. Those who want to give a reply, raise hand. पहले सोच लो। Okay, Deepa, I'll come to you. Others. श्रीधर, ये क्या कर रहा है तू? मेरे को उंगलियां दिखा रहा है। हाँ, ओके। अच्छा, रेज हैंड कर रहा है तू। ओके।
बाकी सब क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। ओके, सोचो, आई विल गिव यू 2 minutes फॉर इट। बाकी सब, और अपना वेबकैम ऑन करो। ओके, सबसे पहले मैं दीपा को चांस दूंगा बिकॉज शी वाज द फर्स्ट टू रेज द हैंड। बोलो दीपा, क्या उपाय है तो तुम्हारे हम पास? डायरी में नोट कर सकते हैं। अरे वही तो उसको नहीं करना है, वो पक गया है। वो 300 लोगों का हिसाब कैसे रखेगा हर महीने? वो कंटाड़ गया है, वो चाहता है कि ये मुझे नहीं करना काम, 300 लोगों का हिसाब। सर तो मोबाइल में ऐसा कुछ पर कर उसको दे ये सब कि रखना तो पड़ेगा ना हिसाब। उसको सबकी डिटेल्स रखनी पड़ेगी। ये सब माथा पीछे कितना है, तुम खुद सोचो। अगर मैं तुम्हें ये काम दूं कि उसके बदले तुम ये उसके लिए मेंटेन करो, मैं बोलूं वो तुम्हें 10,000 का सैलरी देगा ना, तो भी तुम नहीं करोगे ये काम। इट्स अ बिग हेडेक, बट दे आर वेरी स्मार्ट। वो शायद इतना पढ़ा लिखा नहीं है, पर उसके पास उतना वो नैक है कि वो सबका हिसाब प्रॉपर रखता है। क्योंकि जब वो बिल लेके आता है ना, तो मेरी वाइफ चेक करती कि उसने बिल बराबर बनाया कि नहीं। घर पे जब वो दूध वाला हिसाब करने आता है, जो मिल्क पाउचेस देता है, तो तुम्हारे पेरेंट्स भी वो सामने हिसाब रखते हैं ना, उसके साथ टैली करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो उसका नॉर्मली करेक्ट ही होता है। तो वो इस सब से पक गया है। सोचो तुम, आई गो टू समवन एल्स। श्रीधर, या टेल मी। સર એવું તો પોસિબલ નથી ને, હિસાબ તો રાખવો જ પડશે ને એક એક વસ્તુનો. હું એ જ ચાહું છું એવું કેવું કે આ બધું એને માથાકૂટ જ નથી કરવી. એને લાઈફ સિમ્પલ જોઈએ છે. એને લાઈફ સિમ્પલ જોઈએ છે. હવે સર લાઈફ સિમ્પલ જોઈએ તો કોમ્પ્લેક્સ ને સિમ્પલ બનાવવું પડે. હા તો એટલે જ ને, કેવી રીતે બનાવશે? એટલે તો તમારી પાસે આવે છે. હેલો સર, એક મિનિટ, એક के बाद एक. ओके, तिथि बोलो बेटा. सर वो कस्टमर्स को कोई कार्ड दे सकता है कि वो जितनी बार आएगा उतनी बार वो उसमें ही टिक मार्क कर देगा, तो उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तिथि, સવારના પોરમાં 5:30 વાગે તારા ઘરે બેલ મારશે કે આ 3.5 રૂપિયાનું પેપર તમને આપ્યું, મને ટિક કરો. I just wonder what will be your reaction. कितनी बार तो 4:30-5 बजे पेपर आ जाता है, तो वो क्या बेल मारेगा तुम्हारे घर? तो सर वो मतलब जिस घर में सेम पेपर चाहिए वहां पे जा सकता है देने, किसी एक न्यूज़पेपर कंपनी के लिए वर्क कर. पर वो तो बिजनेस क्यों कम करेगा अपना? तो सर उसको सिंपल करना है तो फिर उसको कुछ तो करना पड़ेगा. आइडिया दो ना उसको. ये दूध वाले को कोई अच्छा आइडिया दो ना. चलो कोई बात नहीं, यू कीप थिंकिंग. रोहन, बोलो रोहन. સર આપણે એવું કરી શકીએ કે એટલે મિલ્કમેન એવું કહી શકીએ કે તું એક વારમાં બધું નોટ કરી દે, તારો એક રેટ, અને એક વારમાં જેટલા પણ તારી સાથે જેટલા કસ્ટમર્સ કે જેટલા પણ તારા ખરીદવા વાળા છે એક બુકમાં રાખી દે, એટલે બનાવી દે વોટએવર. સો મે બી ધીસ વિલ હેલ્પ યુ. પણ એ બધું જ એને નથી કરવું યાર. ઇટ્સ યુ નો જસ્ટ ઇમેજિન યાર, આ બધાનો હિસાબ રાખવા 300 લોકોના ડિફિકલ્ટ નથી લાગતું તમને? પોતે વિચારી લો. ડિફિકલ્ટ છે પણ એક વારમાં કરી શકીએ ને આપણે. પણ આ તો હર મહિનાની વાત છે. અને કસ્ટમર્સ તો કસ્ટમર છે. એવું કહેશે પછી કે આવું મેં કહ્યું હતું પણ હમણાં બહુ દૂધ વધી ગયું છે તો અમારે જરૂરત નથી, 3 દિવસ દૂધ ના આપીશ. તો એવું થોડી ને કહેશે કે ના હવે તો લેવું જ પડશે તમારે. હા સર, એટલે 300 રૂપિયામાં દૂધ પહોંચે એટલે થોડું કામ છે, પણ કરવું પડે ને કામ પણ. सर बट ये तो उसका डेली रूटीन हो जाए. एक मिनट. अब बाकी जिन्होंने हाथ रेस किया पहले मुझे उनको पूछने दो. एक मिनट को. आदित्य बोलो बेटा. સર આપણે જે દૂધ વાળો છે તે ડેલી દૂધ આપીને તરત પૈસા લઈ લે તો ના ચાલે. ઓકે.
तो स्पॉट पैसा लेंगे, ऑन द स्पॉट दूध डाल देना, पैसा भी ले ले तो ना चले। that's actually a right suggestion. Okay, I'll just come to you after some time. Okay, તો આ પેપર વાળાનો નહીં ચાલે આવો કરશે તો I'll come to you. निष्ठा बोलो बेटा। तो उसके साथ किसी पर्सन को रख के वो नहीं कर सकता? तो इतना कमाता ही नहीं है कि अफोर्ड कर सकेगा, वो खाएगा क्या और खिलाएगा क्या? सी आई थिंक चलो इनफ अभी। अच्छा जानवी, यू वांट टू से? बोलो जानवी। सर मिल्कमैन कूपन भी तो रख सकता है। हाँ वो मतलब... तो अभी ऐसा ही करते, वो लोग कूपन रखते हैं, बट कूपन का भी उनको हिसाब रखना पड़ता है। और न्यूज़पेपर वाला क्या करेगा? वो तो कूपन नहीं रख सकता ना। हाँ वो कूपन नहीं रख सकता। ठीक है मैत्री। मोबाइल में ऐप होता है तो उससे भी हो सकता है। ऐसा बनाना चाहिए एक्चुअली कि all the requests can be given by people on the app. That's a good suggestion to make a app, but ऐसा अवेलेबल नहीं है अभी, और ये लोग भी इतने टैक्स सेवी नहीं होते हैं। तो एनीवेज आई थिंक आदिप ने जो कहा ना वो एक बहुत अच्छा सजेशन मुझे लगा कि सर वो जब भी कुछ भी आपको बेचने आता है देता है तो पैसा दे दो, खत्म, उसको फिर कोई रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है। अभी तुम मान लो ओके, एज तिथि ऑल्सो सेड कि सर उसको, तिथि यू ओनली सेड कि भाई उसको सुबह सुबह क्या कहा था तुमने, लिखवाने का। ओके तो लिखवाने का नहीं, हाँ कार्ड, बट मान लो कि वो सुबह आया और पेपर दिया और तुमने उसको पैसा दे दिया, तो उसको फिर तुम्हारा कुछ भी याद हिसाब रखने की जरूरत है? नाम लिखने की जरूरत है? डिटेल लिखने की जरूरत है? हाँ जरूरत तो होगी ना, मतलब। पर फिर उसको ये सब पूरे महीने के रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है ना कि भाई तिथि को इस दिन ये न्यूज़पेपर दिया, इस दिन ये न्यूज़पेपर दिया। वो तो ऐसा हिसाब रखेगा, पेपर दिया, पैसा मिल गया, खत्म, किसी का नाम वाम कुछ जरूरत तो है ही ना। तो भी अरे वो कितना अर्न करता है एट द एंड ऑफ द मंथ, उसका वो रखना पड़ेगा ऑब्वियसली। सी वो तो रखना ही पड़ेगा, वो तो ऑब्वियसली रखना पड़ेगा, ऑब्वियसली वो तो रखना ही पड़ेगा। पर अभी क्या उसको महीने के एंड में पूरा बिल बनाने की जरूरत है तुम्हारे लिए? नहीं। तो उसको अभी वो सब याद नहीं रखना। अभी उसको याद क्या रखना है कि आज मैं 200 टाइम्स ऑफ इंडिया लाया, 3.5 रुपए का एक है, ठीक है, तो 700 रुपए मेरे पास आ गए। और उसको घर वाइज सबका हिसाब फिर रखने की जरूरत नहीं है। नहीं है। अंडरस्टूड दिस? यस सर। तो बेसिकली सी ऑब्वियसली ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। ओके ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि भाई न्यूज़पेपर वाला आएगा फिर बजाएगा, हम उसको 3.5 रुपए दे के टाइम्स ऑफ इंडिया लेंगे, पॉसिबल नहीं है। बट कहने का मतलब ये है कि तुम लोग कहीं पे भी आज जा रहे हो, कुछ भी खरीदते हो, ओके, तो सामने वाला क्या तुम्हें तुम्हारा नाम पूछता है? तुम प्रोविजन स्टोर में गए, तुम बुक स्टोर में गए, तुम पेट्रोल पंप पे गए, क्या किसी ने तुम्हें पूछा तुम्हारा नाम क्या है? दवाई की दुकान से कुछ दवाई खरीदने गए ना, सी जो भी बिजनेस करता है ना उसको तुमसे कोई मतलब नहीं है। उसको क्या चाहिए? प्रोडक्ट बेचा और पैसा लिया। यू अग्री विथ मी? Yes, sir. You agree with me? Yes, sir. अभी let's take a example कि तुम्हारे घर के पास जो दवाई की दुकान है जहां से रेगुलरली तुम्हारे फैमिली में लोग मेडिसिन खरीदते हैं, अचानक तुम्हारे पेरेंट ने तुम्हें कहा कि फटाफट जाके ये मेडिसिन लेके आ जाओ, ओके, कोई इमरजेंसी आ गया, तो तुम दवाई की दुकान में गए, तुमने बोला ये मेडिसिन दे दो, बट यू रियलाइज कि पैसे तुम्हारे पास पूरे है नहीं। अब ये एक लाइफ सेविंग मेडिसिन था, तो दवाई की दुकान वाला तुम्हें मेडिसिन तो दे देगा, पर अब क्या वो तुम्हें तुम्हारा नाम पूछेगा कि नहीं पूछेगा?
पूछेगा पूछेगा ना। पूछेगा नाम नहीं पूछेगा। नाम पूछेगा, तुम्हारे पेरेंट का नाम पूछेगा, फिर तुम्हारा कांटेक्ट नंबर पूछेगा, फिर तुम्हारा एड्रेस भी पूछेगा। यू अग्री और नॉट? Yes. क्यों सर क्यों क्यों क्यों? बाकी रखे उसके। क्योंकि उसको हमसे पैसा लेना बाकी है। यू अग्री? यू अग्री? ये न्यूज़पेपर वाला रोज क्यों हिसाब रखता है कि फ्लैट नंबर 101 टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्लैट नंबर 102 गुजरात समाचार प्लस टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्लैट नंबर 105 संदेश, फ्लैट नंबर 107 नो न्यूज़पेपर फॉर 3 days। ये सब उसको क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि वो सब उधार पे तुम्हें दे रहा है न्यूज़पेपर। कैन आई से दिस? तो कहने का मतलब ये है, अच्छा ऐसा है ना, पेट्रोल पंप पे भी हो सकता है। तुम हर बार पेट्रोल पंप पे जाते हो, पेट्रोल भराते हो। अब एक दिन तुम गए, पेट्रोल भरा दिया, फिर तुम्हें रियलाइज हुआ कि पाकिट तो घरे भूल ही गया। ऐसा हो सकता है। ऐसा हुआ मेरे साथ एक बार कि मैं भूल गया और मैं चला गया, टैंक फुल करा दिया, फिर रियलाइज हुआ कि पैसा तो है नहीं। अब पेट्रोल पंप वाले के पास एक ऑप्शन ये है कि वो तुम पे भरोसा रखे और तुम्हें बोले कि पैसा थोड़ी देर में आके दे जाओ। दूसरा ऑप्शन ये है कि पेट्रोल पूरा वो वापस ले ले। अब अगर वो उसे पता है कि तुम एक जेन्युइन कस्टमर हो, रेगुलरली आते हो, वो तुम्हें पहचानता है, तो वो आइडियली क्या करेगा? वो ऐसा बोलेगा कि તમારી બધી डिटेल्स આપી દો અને હમણે થોડી વાર પછી મને મારા પૈસા આપી જજો। ऐसा होगा कि नहीं? Yes. तो वो तुम्हें अब तुम्हारा नाम पूछेगा कि नहीं? अब उसको पूछेगा। तुम्हारे नाम का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि नहीं? रखना पड़ेगा कि नहीं? रखना पड़ेगा। तो कहना ही से अब why a name is to be written in books of accounts? हम किसी का भी नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब लिखते हैं? जब हमें किसी से पैसा लेना बाकी है या किसी को पैसा देना बाकी है। यू अग्री? यू अग्री? तो ये जो मिल्कमैन है, मिल्कमैन, तो तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी मॉम भी हिसाब रखते हैं क्योंकि उनको पैसा देना है, और वो मिल्कमैन भी हिसाब रखता है क्योंकि उनको पैसा लेना है। समझ में आया? सबको ये से पता चला? ऐसे जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। So what are credit transactions? Credit transactions are those transactions where there is exchange of goods or service, but there is no immediate payment. पर immediate payment नहीं है, पर कहने से commitment to pay है या commitment to receive है? Yes. We have received a commitment to receive the money, or we are giving a commitment to give the money. You understood this? Yes, sir. तो दो इफेक्ट क्या हो रहा है? एक इफेक्ट हो रहा है कि सामान आ रहा है या सामान जा रहा है। दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है? कोई कमिटमेंट दे रहा है या कोई कमिटमेंट रिसीव कर रहा है। अग्री? Yes. Yes. क्रेडिट ट्रांजैक्शन में इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम उधार पे बेचते हैं या उधार पे खरीदते हैं तो हमें लोगों का नाम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना पड़ेगा। यू अग्री? Yes. अदरवाइज ये जो प्रोविजन स्टोर है तुम्हारे घर के पास,
तुम कितना भी उससे सामान खरीदो, वो बिल तो देता ही नहीं है, पर वो किसी को, वो तुम्हें तुम्हारा नाम भी पूछता नहीं है। तुम गए, सामान लिया, पैसा दिया, खेल खत्म, उसने पैसा कैश बॉक्स में रख दिया। पर जिस दिन तुमने सामान लिया और पैसा नहीं दिया, तो उसको अपनी डायरी में तुम्हारा नाम लिखना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड दिस? तो अकाउंट्स में तुम खास याद रखना, when do we need to record the name? When we have to either pay to someone or we have to receive from someone. Is this clear? Either we have to Yes, pay sir. money or either we have to receive money. Is this clear? यानी मैं फिर से एक बार कहता हूं, अपने दिलो दिमाग जहन में उतार देना ये कि नाम हम तभी लिखेंगे अगर किसी से पैसा लेना बाकी है या किसी को पैसा देना बाकी है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अदरवाइज हमें किसी का नाम लिखने की जरूरत है नहीं। पेट्रोल पंप पे कोई हमें हमारा नाम पूछता नहीं है, बुक शॉप पे कोई हमें हमारा नाम पूछता नहीं है। नाउ यू विल से कि सर मैकडॉनल्ड में जब मैं गया था तो वहां पे उसने मेरा नाम पूछा, मैंने पैसा दिया, फिर भी पूछा। अब उसने नाम इसके लिए पूछा क्योंकि ऑर्डर में टाइम लगेगा, तो वो तुम्हारा नाम लेके तुम्हें बुला सके। पर क्या वो कहीं पे तुम्हारा नाम लिखता है कि इसका पैसा इतना बाकी है? नहीं। नो। एक कॉफी शॉप है जिसका नाम है स्टारबक्स, पता है सबको स्टारबक्स? Yes. कॉफी कैसा भी हो, उसके साथ फोटो खींचने में अलग ही मजा आता है। और स्टारबक्स में ये खासियत है कि जैसे ही तुम वहां पे ऑर्डर दोगे ना, तो वो लोग ग्लास लेंगे और उस पे तुम्हारा नाम लिखेंगे। तो क्या वो तुम्हें उधार पे कॉफी बेच रहे हैं? नहीं। तो वो नाम इसके लिए लिख रहे हैं क्योंकि जब ऑर्डर आएगा, कॉफी बन जाएगा, तो वो तुम्हारा नाम लेके तुम्हें बुला सके। वो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तुम्हारा नाम लिखते नहीं है। उसका जो बिल है, उसके बिल में क्या तुम्हारा नाम लिखा हुआ होता है? नहीं, क्योंकि वो तुम्हें उधार पे नहीं बेच रहे भाई, वो पहले पैसा ले लेते, कैश ले लेते हैं और फिर तुम्हें वो कॉफी देते हैं। अब कॉफी का टेस्ट कैसा भी हो, नाम लिखा है, स्टारबक्स का कप है, फोटो तो बनता है। सही है। तो नाम, हम किसी का भी नाम, बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंट्स, यू शुड नो कि हम किसी का भी नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी लिखेंगे अगर किसी से पैसा लेना बाकी है या किसी को पैसा देना बाकी है। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मान लो कि तुम्हारा प्रोविजन स्टोर था, सागर सर आए तुम्हारे पास और तुमसे सब सामान खरीदा, 700 रुपीज का बिल हुआ, पर सागर सर वॉलेट लाना भूल गए। अब तुम तो सागर सर को पहचानते हो, तो तुमने कहा कि सर वांधो नहीं, काले आप ही दे जो पैसा, पर तुमने स्मार्टली नोटबुक में लिख दिया कि सागर सर 700 रुपीज पेंडिंग। ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखेंगे। लिखना चाहिए। बिजनेस में एकदम पक्का रहना चाहिए, क्योंकि अगर बाद में भूल गए तो तुम्हारा ही लॉस हो जाएगा। तो तुमने डायरी में लिख दिया। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, सागर सर आए नहीं। रोज उसको देख के तुम इंतजार कर रहे थे कि कब 700 आएगा। फिर 4th डे सागर सर आ गए और कहा सॉरी बेटा, मैं भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया, ये तुम्हारे 700 रुपीज ले लो। अब मुझे बताओ,
तुमने जहां पे 700 पेंडिंग लिखा था, 700 पेंडिंग, ओके सागर सर, वहां पे तुम लिखोगे फिर से सागर सर पेड ₹700, ऐसा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। तो नाम कब लिखोगे तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? either when you are selling on credit or you are buying on credit or you have sold to someone earlier, that person is now giving you money, or you have purchased from someone earlier on credit and now you are giving money to that person. Is this clear? तो ये नाम 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 कब खेलना है? अगर किसी से पैसा लेना बाकी है और किसी को पैसा देना बाकी है। समझ में आया सबको ये कंसेप्ट? यस सर। प्लीज 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 ये कंसेप्ट भूलना नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तुम ट्रांजैक्शन पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर क्रेडिट है तो फिर तुम्हें उसमें नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स, किसका नाम? किसका नाम? उसका नाम जिसको हम उधार पे बेच रहे हैं, उसका नाम जिससे हम उधार पे खरीद रहे हैं। Is this clear? We have to record the name of the person. Name of the person. Just a minute, I'll write it over here. We have to record name of the person. To किसका नाम? To whom we are selling or from whom we are buying. अब ध्यान दो, किसका नाम? जिसको हम बेच रहे हैं या जिससे हम खरीद रहे हैं। Is this clear? यस सर। Now, यस। ट्रांजैक्शन पढ़ के कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट? So I will write a transaction. ध्यान दो, तुम्हें भी ये एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन नोटबुक में लिखना है। एक्स्ट्रा 1, ध्यान देना प्लीज। परचेज गुड्स ऑफ ₹3,000 फ्रॉम, ओके फ्रॉम नहीं लिखते, purchase goods of ₹3,000. That's it. Purchase goods of ₹3,000. Tell me, is this a cash or a credit transaction? Cash transaction. ध्यान दो, कैसे पता चला कि ये कैश ट्रांजैक्शन है? क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम तो दिया ही नहीं है। इट मीन्स व्हाट? नाम अगर नहीं पूछा, इट मीन्स पैसा मिल गया। समझ में आया सबको? यस सर। ओके। कोई तुम्हें तुम्हारा नाम क्यों नहीं पूछता? क्योंकि उसको तुम्हारा नाम से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि सामान दिया, पैसा मिला, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes. Yes, Now, second transaction I am writing. Please be careful. Purchased goods of ₹3,000 from Ajay. Now पहले ट्रांजैक्शन में नाम नहीं दिया था, इसका मतलब ये कि सामान खरीदा और हमने पैसा दे दिया। पर यहाँ पे नाम दिया है अजय का और कोई भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं है कि हमने उसको पैसा दिया कि नहीं दिया।
तो हम क्या मानेंगे, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो अब क्रेडिट ट्रांजैक्शन का टू इफेक्ट कैसे देंगे हम, प्लीज ध्यान देना सब। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का पहले इफेक्ट ए और इफेक्ट बी। हाँ क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्यों हुआ है? सॉरी શું કહ્યું તે? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्यों हुआ? ये इसके लिए शुभांकर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ क्योंकि नाम दिया है पर ऐसा कहीं पे भी नहीं दिया है कि हमने पैसा दिया। अंडरस्टूड? यस। यानी किसी का नाम दिया है, नाम दिया है तो चेक करना है कि इसका नाम है तो इसने क्या पैसा दिया। अब ट्रांजैक्शन में कहीं पे भी लिखा है कि वी पेड कैश टू अजय, नहीं। इट मींस नाम दिया है पर कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफ रिसीप्ट या पेमेंट नहीं दिया है, तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इज दिस क्लियर? यस। तो नाउ अब ध्यान देना इसका टू इफेक्ट कैसे आएगा। हमेशा ए और बी लिख लो। परचेज गुड्स, सो व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, गुड्स कम्स इन, अंडरलाइन गुड्स। अब ध्यान दो, यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा दिया है कि हमने अजय को पैसा दिया? नहीं। ऐसा दिया है कहीं पे? तो अब हमें अजय का नाम लिखना पड़ेगा। यस। अब अजय कौन है? अभी जब तुमने सामान खरीदा, तुमने खरीदा, ओके, बिजनेस ने खरीदा, तो सामान कम्स इन, पर मुझे उसका नाम लिखना पड़ेगा ना जिसने ये सामान मुझे दिया। यस सर। हेलो हेलो, वंस अगेन ध्यान दो। यस सर। हिमा? यस सर। ओके, नाउ ध्यान दो, हमने ये सामान खरीदा पर पैसा नहीं दिया, तो हमें उसका नाम लिखना पड़ेगा जिससे हमने ये सामान खरीदा। तो इफेक्ट इज हु इज द गिवर ऑफ दिस गुड्स? अजय। अजय इज द गिवर। समझ में आया? यस सर। अजय को अंडरलाइन करेंगे। Who is the giver? Yes, sir. Ajay is the giver. Got it, all of you? Yes sir. Okay. Yes sir. Now, third one. हेलो। Mute कर दो अपने आप को please. Third one. Purchase goods of ₹3,000, ध्यान देना प्लीज, from Ajay for cash. Purchase goods of ₹3,000 from Ajay for cash. Starbucks में मेरा नाम पूछा, पर क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा? No. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा? नहीं। No. मैं तुम्हारी दुकान से हर बार खरीदने आता हूँ, तुम्हें मेरा नाम पता है, पर क्या तुम मेरा नाम नोट पे लिखोगे अगर पैसा दे दिया तो? नहीं। ये कैश है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? Cash. क्यों कैश? Although name is given, but the word cash is given, it means we don't have to record this name. It is a credit transaction. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes sir. ये तीनों लिख दिया सबने? यस सर। यस सर। ये एक बार वापस समझाओ ना, क्रेडिट कैसे हुआ? सर कौन कैश सा वाला? ट्रांजैक्शन हुआ ना? कौन सा वाला? थर्ड वाला। सर कैश ट्रांजैक्शन था सर ना? कैश ट्रांजैक्शन हुआ। Sorry. कैश ट्रांजैक्शन। Yeah, cash transaction. My bad. I apologize. Okay, sorry, गलती हो गया मेरे से लिखने में. It's a cash transaction. देखो कितने स्मार्ट हो गए तुम लोग. तुम एक सीए का गलती निकालने लग गए. Amazing. Okay, now, yeah, it's a cash transaction. लिखने में गलती हो गया मेरे से. समझ में आ गया सबको?
Yes, sir. Yes, sir. नाउ मैं चाहता हूं, मैं एक ट्रांजैक्शन और चाहता हूं सेल्स वाला तुम्हें कराने के लिए, ताकि तुम्हारे पास हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए. सोल्ड गुड्स, यू कैन राइट विथ मी, ऑफ ₹5,000 टू विजय. कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? Credit transaction. क्रेडिट Credit transaction. Credit transaction. क्योंकि यहाँ पे नाम दिया है पर हमें पैसा मिला ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन दिया नहीं है. समझ में आया सबको? अब इसका टू इफेक्ट्स कैसे बनेगा? प्लीज बी केयरफुल. नाउ इफेक्ट ए एंड इफेक्ट बी. नाउ सोल्ड गुड्स, सी तुम्हें कैसे टू इफेक्ट्स करना है. सोल्ड गुड्स तो तुम्हें एक इफेक्ट तो पता चल गया, व्हाट गोज आउट. हमेशा इफेक्ट बी विल बी व्हाट गोज आउट. व्हाट गोज आउट? Cash goes out. कैश. Goods goes out. Goods goes out. Goods goes out. अंडरलाइन किया goods को. नाउ सामान तो हमने दे दिया, पर जिसको दिया उसका नाम लिखना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. Vijay is the buyer. Vijay. ये सामान हमने जिसके हाथ में दिया उसका नाम लिखना पड़ेगा कि नहीं? Yes, sir. Vijay is the buyer. The buyer. Vijay is receiver. Is the Receiver or a buyer. receiver of these goods. Receiver. Who is the buyer is also correct, but we write who is the receiver. Vijay is the receiver. Understood this? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. लिख लो. Yes. लिख लो. Yes, sir. इफेक्ट ए एंड इफेक्ट बी बनाओ फिफ्थ ट्रांजैक्शन का तुम खुद. खुद बनाओ, लिखो. Done, sir. Done, sir. Thank you. થઈ ગયું? ઓકે, મને ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ કહી દો. શું છે ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ? What comes in? Cash comes in. What comes in? कैसे पता Cash. चला? What Received. Received है. Received. Received cash इसीलिए. Cash comes in. Underline cash. Now what is effect B? Who is giver? Who is the giver of giver? this? Very good, all of you. Giver. Very good. Very nice. कौन बोला who is the receiver? इसमें तुम्हें पैसा मिला तो तुम उसका नाम लिखोगे ना जिसने तुम्हें पैसा दिया. तो इफेक्ट बी विल बी who is the giver. Vijay. સર હેલો સર. हाँ બોલો. સર હવે સપોઝ સેન્ટેન્સમાં બે વ્યક્તિનું નામ આવે અને એમાં એવું આવે ફોર એક્ઝામ્પલ રોહન રિસીવ્ડ કેશ ₹5,000 ફ્રોમ વિજય. તો સર પછી એમાં બી વાળામાં શું આવશે? એક મિનિટ આપણે જોવાનું છે રોહન, આપણે આપણા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ મેન્ટેન કરવાના છે. એટલે સી હું મારા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ મેન્ટેન કરું છું. હવે તમે બંને ફ્રેન્ડ્સ આપસમાં એકબીજાને પૈસા આપો તો મારે શું લેવા દેવા છે? મારે એ જોવાનું છે કે મારી આગળ પૈસા આવ્યા કે મેં કોઈને પૈસા આપ્યા, મેં ખરીદ્યું કે મેં વેચ્યું. બિઝનેસ જોડે શું ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે એ આપણે જોવાનું છે. કોઈ આપસમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કરે એનાથી આપણે કોઈ લેવા દેવા નથી. એવા ટ્રાન્ઝેક્શન આવશે એને આપણે કહેશું ઓન બિહાફ ટ્રાન્ઝેક્શન. એ અલગ છે કે મારા બદલે કે કોઈના બદલે કોઈએ પૈસા આપ્યા, એ અલગ ટ્રાન્ઝેક્શન છે. પણ આમાં તો આવું કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન અત્યારે નહીં આવે. ડોન્ટ વરી. ઓકે સર. ओके, अच्छा ये फिफ्थ किया सबने? Yes, sir. अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो फिफ्थ किया तुमने, तो ये फिफ्थ कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन है. तो बच्चों अब हमें ये समझना है यहाँ पे कि अगर दोनों में से
दोनों में से कोई भी एक इफेक्ट कैश कम्स इन या कैश गोज आउट है तो इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन. इज दिस क्लियर? Yes. Is this clear? Yes. Now, अगर कहीं पे भी कैश 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 लिखा नहीं है और नाम दिया है तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Now I will take 5-7 minutes more because ये पूरा कनेक्शन में है, तो just bear with me. Pay electricity bill of rupees 1000 to MGVCL. अब मुझे ये बताओ, ये कैश है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन. Cash transaction. कैसे पता चला कि ये कैश है? क्योंकि पेड लिया है. Paid लिया है इसमें. पेड लिखा है. Because of the word paid. Paid. This is clear? तो हमें MGVCL का नाम रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है. तो इसमें ये क्या आएगा? What comes in? What comes in? Service Service comes in. So we write service comes in. And in Electricity expenses incurred. electricity Service expense incurred. Very good. And effect B, we all know what goes out. Cash. Cash goes out. Now, pay mobile bill of rupees 350 to Reliance Jio. मुझे बताओ ये कैश है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? कैश ट्रांजैक्शन. Cash transaction. Cash transaction. Cash. Okay. Pay salary rupees 15,000. ये माइक बंद करो भाई, अपना म्यूट करो प्लीज. Paid salary 15,000 to मुनीम. कैश है या क्रेडिट? Cash. मुनीम कैश. मुनीम का नाम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नहीं. No, sir. Received commission. एक ही सेकेंड. ये कौन है जो ऐसे माइक में आहे भर रहा है? कंट्रोल करो अपने आप को, म्यूट करो. Okay, received commission rupees 500 from राजेश. राजेश का नाम लिखना है कि नहीं लिखना है इसमें? नहीं लिखना. नहीं लिखना. नहीं लिखना. नहीं लिखना. नहीं. इसमें नाम लिखना नहीं है. क्यों? क्योंकि वर्ड है रिसीव. Received. पैसा मिल गया, Cash. सर्विसेज Cash दे दिया, transaction. तो इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन. समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके. इसमें किसी को अभी कोई डाउट है? No. नो सर. No, sir. ट्रांजैक्शंस लिख लिए? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब just a recap of what we did today was कि सी तुम्हें याद क्या रखना है. आज का पूरा जो लेक्चर था उसमें तुम्हें याद ये रखना है कि किसी का भी नाम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी आएगा अगर हमें किसी से पैसा लेना बाकी है या किसी को पैसा देना बाकी है. इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट इन दिस? No. में एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए. तुम याद रखना कि पेट्रोल पंप पे, बुक स्टोर पे, प्रोविजन स्टोर पे कोई तुम्हें तुम्हारा नाम पूछता नहीं है. अगर स्टारबक्स पे या मैकडोनल्ड पे या कोई रेस्टोरेंट में
किसी ने तुम्हारा नाम पूछ भी लिया, it is not, they are not recording in their books of account, it is just for calling you for your order. बाकी उनको तुम्हारे नाम से कोई मतलब है नहीं. उन्होंने कप पे तुम्हारा नाम लिखा और वो कप तुम्हें ही दे दिया, यानी खुद के पास कोई भी उन्होंने रिकॉर्ड रखा नहीं है. क्यों नहीं रखा? क्योंकि उनको तुम्हारे नाम में इंटरेस्ट नहीं है. क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि तुमने पैसा दे दिया और उसने तुम्हें सामान दे दिया. ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट. अंडरस्टूड दिस? Yes. Yes, sir. आदिल, ये क्या मस्ती कर रहा है तू? ओके, नाउ वर्कशीट 2. वर्कशीट 2. वर्कशीट 2 में up to transaction number 1919 you have to do it as homework.